Okay, students, how are you? Today we are going to do 12th standard wave optics NCERT questions. Students, as I always say कि आप अपनी notebook और अपने pen को अपने साथ रखें so that आप इसको साथ साथ note down करें. Question 1 says monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on water surface. What is the wavelength, frequency and speed of the reflected and refracted light? Given refractive index of water is 1.33. Now student, in this question, lambda, that is wavelength, is given to you 589 nanometer, so that is 10 to the minus 9 meter. We know that speed equals to distance over time, that is frequency equals to speed over wavelength. Speed is given of light is 3 into 10 to the 8 meter per second. Wavelength is also given to us, so we can calculate frequency. Now student, during reflection or refraction, frequency remains unchanged. So in the second case, where it is from water, the wavelength gets changed by 1 by mu factor, which mu is refractive index, which is given to us is 1.33. So wavelength gets reduced by lambda by mu, which is 4.42 10 to the minus 7 meter. Frequency remains the same, that is 5.09 10 to the 14 hertz. Again, apply speed equals to distance upon time. So that is speed is given to us, wavelength, refractive index is given to us, that is speed is reduced to 2.25 10 to the power 8. Wavelength we have calculated, frequency remains the same, speed we have calculated. Now come to question number second. Question second says, what is the shape of wavefront in each of the following cases? Light diverging from a point source. Let us say this is a point source, यहाँ से light बाहर की तरफ आ रही है. So अगर यहाँ से हम एक circle complete करें, so it is appearing like spherical wavefront diverging out. Second, light emerging out of the convex lens when a point source is placed at the focus. Student, we know that when light source is at the focus, after refraction through lens, it goes parallel. So before refraction, it would form a spherical wavefront, and after refraction, it forms plane wavefront because lights are going parallel. Third, the portion of the wavefront of light from a distant star, that is object, must be at infinity, intercepted by the earth. Now student, आपके पास wavefront, प्लेन वेवफ्रंट, बिकॉज हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इंफिनिटी से लाइट सोर्स पड़ा है और वहां से लाइट इंफिनिटी से आ रही है, दैट इज पैरेलल. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेज the refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in the glass? Speed of light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now student, when light goes from one medium to another medium, the speed gets changed, wavelength gets changed, but frequency remains the same. Now in this case, speed 3 into 10 to the power 8 in vacuum, refractive index is given to us 1.5, so we can calculate the speed in the different medium. So 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5, it is coming out to be 2 into 10 to the power 8 meter per second. Second, is the speed of light in glass independent of the color of light? Student, हमें पता है कि विबग्योर 7 कलर से मिलके बना है, और प्रिज्म से जब ये 7 कलर पास होते हैं तो सबके डाइवर्जन होने का रीजन ही उनकी स्पीड डिफरेंट होता है. और स्पीड डिफरेंट इस वजह से होती है बिकॉज हर किसी कलर की अलग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. और हमने अभी ये पढ़ा कि सर स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इनवर्सली डिपेंड होता है. तो यस सर, अगर आपका म्यू चेंज हो जाएगा तो स्पीड डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. तो इट इज इंडिपेंडेंट? नो सर, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. अच्छा सर, अब बताइए सर, विबग्योर में आते हैं. सर विबग्योर की अगर आप बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है विद, एंड सबसे कम रेड का होता है.
तो सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके अंदर स्पीड ज्यादा, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर के लिए कम है, तो सर वी किसका ज्यादा होना चाहिए बच्चों, वी होना चाहिए रेड का ज्यादा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10.4। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे ही आपके पास आए, आप अपनी नोटबुक में कुछ फॉर्मूलेज लिखें, जैसे पाथ डिफरेंस मैक्सिमा मिनिमा, स्टूडेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फेज डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और स्टूडेंट एक टेबुलर फॉर्म बना लीजिए, एक तरफ लिखिए इंटरफेरेंस के लिए और एक तरफ लिखिए डिफ्रैक्शन के लिए। और स्टूडेंट आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है मैक्सिमा इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, तो सर यही सेम एन लैम्डा डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा की कंडीशन। सर जहां पे 2n+1 लैम्डा बाय 2 हमें दिखाई देता है मिनिमा का केस इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, सर ये मैक्सिमा का केस दिखाई देता है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आप जब इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट इट सेज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर, दैट इज स्लिट विड्थ दे रही, दैट इज स्मॉल डी जो आप सिंबल यूज करते हैं, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, दैट इज स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस दिया हुआ है which is represented by capital D 1.4 meter. The distance between the central bright fringe मतलब मैक्सिमा की बात कर रहा है and the fourth bright fringe मतलब N4 दे दिया is measured to be 1.2 centimeter, that is distance दिया है central maxima से fourth maxima के बीच में, जिसे आप X या Y सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Determine the wavelength of the light used. Now student इंटरफेरेंस का क्वेश्चन था, मैक्सिमा का क्वेश्चन था, इसीलिए हमने एक्सप्रेशन यूज किया एल लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। नाउ स्टूडेंट अब देखिए सारी बातें गिवन है, इट इज गिवन टू मी 1.2 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 10 to the -2 meter, n was given to us fourth maxima, lambda is unknown for us, capital D is 1.4, small d which is 0.28 millimeter, that is 10 to the -3. Now solve for lambda and we get 600 nanometer. Now come to the next one. Student, this is very important question for board point of view. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. What is the intensity of the light at a point where the path difference is lambda by 3? Now student हमें पता है कि what is the relation between path difference and phase difference. लिखो बच्चों अपनी नोटबुक में phase difference और path difference में relationship 2 pi by lambda into path difference is phase difference. हाँ जी सर बिल्कुल यही लिखा है हमने सर 2 pi by lambda into path difference is referred as phase difference. Now path difference is given to us lambda. सर पाथ डिफरेंस लैम्डा गिवन है, यस सर लैम्डा ने लैम्डा को कैंसिल किया तो सर वेव फेज डिफरेंस कितना आया सर 2 पाई आया। ओके सर, अच्छा सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें ये भी पता है कि 4I0 cos स्क्वायर 5/2। हाँ सर 5/2 सर लैम्ब 5 तो हमने 2 पाई निकाला था सर 2 पाई/2 दैट इज पाई, तो 4I0 cos स्क्वायर पाई। सर cos पाई की वैल्यू तो -1 होती है, हाँ सर, और -1 का स्क्वायर विच इज +1, तो इट कमिंग आउट टू बी 4I0। और सर आपको बताया गया था कि इस समय की इंटेंसिटी को आप k की रिप्रेजेंटेशन करिए, सर इसको हमने k से लिख दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए, ओके सर, फिर से फेज डिफरेंस निकालते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू λ/3, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई/3। ओके सर, फिर लगाइए सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर 5/2। नाउ दिस टाइम 5 is 2 पाई/3 डिवाइड बाय 2 दैट इज पाई/3। नाउ स्टूडेंट cos 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर व्हिच इज 1/4, 4I0 1/4 दैट इज I0।
स्टूडेंट हम लोगों ने 4 आई नॉट की वैल्यू k से रिप्रेजेंट की थी, तो आई नॉट की वैल्यू k/4 से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, which is asked. Okay, next. Again, this question is important for both point of view. The question says a beam of light consisting of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer, is used to obtain interference. Now again, student, इस चैप्टर में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आएंगे। तो एक टेबल बनाइए जिसके अंदर एक टेबल में इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस लिख दीजिए। पोजीशन के लिए n लैम्डा d बाय स्मॉल d, मिनिमम के लिए 2n+1 लैम्डा d बाय 2d, और ये अपोजिट कंडीशंस हैं डिफ्रैक्शन के लिए। सर फ्रिंज विड्थ तो दोनों के लिए सेम होता है, लैम्डा d बाय स्मॉल d। यस सर। पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम के लिए होता है n लैम्डा, तो सर n लैम्डा मिनिमम की केस है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पाथ डिफरेंस। ओके सर, अब देखते हैं। 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Capital D, that is distance between screen and slit, is given to us. Small d, that is slit width. Find the distance of the third bright fringe, that is maximum, on the screen from the central maxima of wavelength 650 nanometer. Now student, मैक्सिमा की कंडीशन पूछ रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, इसलिए n लैम्डा d बाय स्मॉल d। थर्ड मैक्सिमा की बात कर रहा है तो n is 3, लैम्डा which is given to us 650 नैनोमीटर, कैपिटल D is given to us, स्मॉल d is given to us। यहां से आप पोजीशन निकाल सकते हैं। अब आइए सेकंड पार्ट पे। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज पोजीशन मांग रहा है, जिसे आप x या y से रिप्रेजेंट करते हैं, where the bright fringes due to both wavelength coincide. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। इसका सिग्निफिकेंस समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप और आपके गार्डियन एक रूम के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहते हैं। आपके गार्डियन आपकी रिस्पेक्ट में हाइट में बड़े हैं, उनकी जो फीट लेंथ है वो आपसे बड़ी है। मान लेते हैं आपने रूम के एक एंड से दूसरे एंड तक कवर किया, लेट अस से 5 मीटर। कवर तो उन्होंने भी 5 मीटर किया, यस सर, लेकिन उनको नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे क्योंकि उनकी फीट लेंथ बड़ी है। ओके सर, मान लेते हैं आपके और आपके गार्डियन के बीच में जो नंबर ऑफ फीट स्टेप्स है वो मिनिमम गैप है। ठीक है सर, अगर आपने 20 स्टेप्स लिए हैं तो आपके गार्डियन ने डेफिनेटली कम स्टेप्स लिए होंगे क्योंकि उनकी फीट लेंथ बड़ी है। नाउ स्टूडेंट, मैंने कहा कि आपके और आपके गार्डियन के बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स के लीस्ट इंटीजर का गैप है। तो अगर आपने 20 स्टेप्स लिए हैं तो उन्होंने डेफिनेटली कम स्टेप्स लिए हैं, और एक कम दैट इज 19 स्टेप्स लिए होंगे, तो भी वो मिनिमम डिफरेंस होगा। अब देखिए, यहाँ पे उसने कहा है 650 नैनोमीटर पहले की वेवलेंथ है, यहाँ पे उसने कहा है 520 नैनोमीटर दूसरे की वेवलेंथ। सो लेट अस से दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों का x या y सिंबल वो तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स इन्हें कम लगेंगे 650 क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लगेंगे क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, और इन दोनों के बीच में लीस्ट गैप है। तो अगर मान लेते हैं इनको n स्टेप्स लगे हैं तो इनको n+1 स्टेप्स लगे होंगे, और अगर इनको n स्टेप्स मान लेते हैं 520 वाले को, तो 650 वाले को n-1 स्टेप्स लगे होंगे। हाँ सर, अब करते हैं। देखिए दोनों को डिस्टेंस सेम लगा था, n लैम्डा d बाय स्मॉल d। d कैपिटल D मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्मॉल d मतलब स्लिट विड्थ, वो तो दोनों के लिए सेम है। सर यहाँ पे आपने n यूज किया, यहाँ पे आपने n-1 यूज किया। बच्चों आप खुद आप सोचो कि n स्टेप्स लगे हैं, यहाँ पे n-1, बच्चों n-1 650 के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा क्योंकि इसको नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे। तो सर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर 520। ओके सर, तो n के साथ हमारे पास हुआ 520 और n-1 के साथ हुआ 650। यहाँ से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। n मतलब आपके पास जो नंबर है, जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है कॉरेस्पॉन्डिंग टू
520 नैनोमीटर। ठीक है सर, अब डिस्टेंस कितना होगा, एन लैम्डा डी बाई डी। बेटा एन अगर आप 5 यूज कर रहे हैं तो आपको वेवलेंथ 520 वाली यूज करनी पड़ेगी, और अगर आप N4 वाला यूज करेंगे मतलब इससे एक कम, तो आप 650 यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द रिजल्ट टू गेट डिस्टेंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 says in double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 degrees on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What is the angular width of the fringe if entire apparatus is immersed in water? बेटा अगर वाटर के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते, किसी वेवलेंथ को पुट कर देते हैं, तो उसकी वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फैक्टर। टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सर वेवलेंथ म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। हाँ सर ये तो है। सर आपको क्वेश्चन में एंगुलर विड्थ गिवन थी, दैट इज बीटा बाय डी, और सर बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ होती है। सर बीटा लैम्डा डी बाय डी होता है, तो सर डी ने डी को कैंसिल किया, तो एंगुलर विड्थ का मतलब हम लैम्डा बाय स्मॉल डी के नाम से भी जान सकते हैं। सर अब वेवलेंथ रिड्यूस हो गई है म्यू फैक्टर के साथ, तो लैम्डा डैश की जगह मेरे पास आएगा लैम्डा बाय म्यू इनटू स्मॉल डी। नाउ lambda by small d is corresponding to angular fringe width divided by mu. Sir angular fringe width तो क्वेश्चन में ही गिवन थी 0.2 मीटर। सर म्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन था, दैट इज 4/3, so it is coming out to be 0.15 degrees. Now come to question number 8. Question number 8 says what is a Brewster's angle for air to glass transition given refractive index of glass is 1.5. Now student, ब्रूस्टर एंगल वो होता है जहां पे जब आप इंसिडेंट रे डालते हैं, कुछ रे रिफ्लेक्ट बैक होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है और कुछ एब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट जब पोलराइजेशन हो जाता है, इन दैट केस रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो आपके पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री है। ओके सर, सर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, सो इट मस्ट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस हैज टू बी आई। इफ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सर अब आप इन तीनों को देखिए, क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है? देखिए सर आई प्लस 90 प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो आई प्लस आर इज 90 डिग्री, राइट सर। अब स्नेल्स लॉ लगाइए, which is mu equals to sin I by sin R. ओके सर, सर sin R कितना है? R मतलब 90 minus I. सर sin 90 minus I which is cos I. Mu times of refractive index times of cos I. सर cos I को आप नीचे ले जाइए, sin by cos that is equals to mu. बच्चों आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू tan। सर तो I का मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्वेश्चन में ही गिवन था 1.5। हाँ सर, तो आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence the reflected ray normal to the incident ray? बेटा ये incident ray है, ये reflected ray है, अब इसके बीच में 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट अभी अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती थी? स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ। सर लाइट की बात कर रहे हो तो स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। वेवलेंथ क्वेश्चन में ही गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सर रिफ्लेक्शन हुई है ना,
तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। अगर रिफ्रैक्शन हुई होती तो वेवलेंथ चेंज होती। सर आपके पास वेवलेंथ भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। अब उसने कहा था कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे 90 डिग्री टू ईच अदर होते हैं। सर हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, सो दैट इज आई प्लस आई शुड बी इक्वल्स टू 90, so that is I must be equals to 45 degree. Now come to question number 10. Estimate the distance for which ray optics is good approximation for aperture of 4 millimeter and wavelength of 400 nanometer. Now student हमें फ्रैक्शनल डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट फ्रैक्शनल डिस्टेंस होता है अपर्चर का स्क्वायर डिवाइड बाय वेवलेंथ। Now student both are given to you. Aperture that is 4 millimeter ka square over wavelength that is 400 nanometer. So fractional distance is coming out to be 40 meter, for which ray optics is a good approximation. Now come to question number 11. Question 11 says the 6563 angstrom hydrogen alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be red shifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. बेटा ये डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। डॉपलर्स इफेक्ट जहां पे हमें वेवलेंथ शिफ्टेड का एक्सप्रेशन पता है, लैम्डा v डिवाइड बाय c। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये अवे जा रहा है। नाउ स्टूडेंट v speed we need to calculate, so take c and lambda here, so we get fractional change in wavelength into speed of light. Now student shifted by लिखा है ना, that is delta shifted by 15 angstrom, मतलब delta times of lambda which is given to me 15 angstrom. Wavelength was given to me 6563 angstrom into speed of light, 3 into 10 to the power 8. So we can calculate the speed with which the star is receding from the earth. Now come to question number 12. Question 12, it says explain how corpuscular theory predict the speed of light in a medium, say water, to be greater than the speed of light in vacuum. Is a prediction confirmed by experimental determination of the speed of light in water. Now student आपके पास यहाँ पे हम फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। लेट अस से यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्ट कर गई इन डेंसर मीडियम। दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम होता है, ये हमें पता है। refractive index of water is more than refractive index of air and hence R angle must be smaller than I angle. Student आपके पास अगर ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर की तरफ रे जाएगी so it will bend towards the normal. Student रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर से ज्यादा है, सो हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, सो दैट इज v1 has to be lesser than v2. Now Huygens principle wavefront propagation relation of Snell's law can be mathematically obtained in which it is shown that v1 is more than v2. Okay, students, come to question number 13. Question 13 says, you have learned in the text how Huygens principle led to the law of reflection and refraction. Use the same principle to deduce directly
that a point object placed in front of a plane mirror produces virtual image whose distance from the mirror is equal to object from the mirror. Now students, मान लेते हैं ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है. स्टूडेंट, अगर लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है जिसने लाइट हर डायरेक्शन में दी है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. स्फेरिकल वेव फ्रंट बने. यहाँ से लाइट स्ट्राइक करके गई और स्टूडेंट यहाँ पे जब स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हुई लाइट, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई. स्टूडेंट, अब लाइट जिस एंगल से हिट करेगी उस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी. तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर अगर वेव फ्रंट बनाए, अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर से वेव फ्रंट्स फॉर्म हो रहे हैं. राइट सर? अगर सर यहाँ पे वेव फ्रंट्स हम हाइगन्स प्रिंसिपल को अप्लाई करें, दैट every wave front act like a source for another wave front in the progressive manner, तो सर इसके यहाँ पे वेव फ्रंट्स हमने प्रोड्यूस किए. तो हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो वेव फ्रंट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक वो एक जैसे दिख रहे हैं. स्टूडेंट, एक्स वाई इज अ वेव फ्रंट. ये है एक्स वाई emitted from the source if mirror is not there. अगर मिरर नहीं है तो x dash y dash is a mirror image. ये है x dash y dash जो कि रेज रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई और इसका वेव फ्रंट बना, which appear to be emitted from point I. हमें ऐसा अपीयर हो रहा है like this. तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे जो पोजीशन बन रही थी उसकी वजह से यहाँ पे वेव फ्रंट बन रहे हैं. That is, image of the wavefront appear to be emitted from I, which is source. Students, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन 14. Let us list some of the factors which could be possible influence the speed of wave propagation. First, nature of source. Student, direction of propagation, motion of source and observer, wavelength, intensity of the wave. On which of these factors, if any, does the speed of light in vacuum, the speed of light in medium, say glass, depends? Student, speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is independent. तो स्टूडेंट, इनमें से किसी पे भी लाइट डिपेंडेंसी नहीं है अगर वो वैक्यूम की बात करें. हाँ जी सर, अगर मीडियम की बात करें तो स्टूडेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डेफिनेटली डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है सर. अगर हम ट्यूबलाइट या एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाएं, स्टूडेंट वेवलेंथ सेम होनी चाहिए बस दोनों के लिए. तो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंड नहीं करता. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, we are not talking about velocity. Now student, third, motion of the source and observer, again no dependency. Wavelength, yes sir, wavelength पे depend करता है क्योंकि सर wavelength और refractive index में relationship होता है. Student, medium के अंदर wavelength 1/mu times हो जाती है original की, या in other words student speed gets changed depending on the wavelength. Next, intensity of the wave, again no dependency. Now come to question number 15. For sound wave, the Doppler formula for frequency shift differs slightly between the two situations: source at the rest, observer moving, and source moving, observer is at the rest. The exact Doppler formula for the case of light wave in vacuum are, however, strictly identical for these situations. Explain why this should be so.
what you expect the formulas to be strictly identical for the two situations in case the light traveling in the medium. स्टूडेंट हम लोगों ने ना डॉपलर्स इफेक्ट 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, डॉपलर्स इफेक्ट इन केस ऑफ साउंड, और हमने 12th क्लास में भी पढ़ा डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। स्टूडेंट हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन 11th क्लास ऑनवर्ड्स देखा हुआ है, दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट माइनस वीओ मतलब स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस सी माइनस वी एस दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। नाउ स्टूडेंट अगर सोर्स रेस्ट पे है दैट इज वी एस इक्वल्स टू 0, ऑब्जर्वर इज मूविंग दैट इज वी ओ, तो सर इसके अंदर वी ओ इज प्रेजेंट, वी एस इज 0। ठीक है सर, दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रियल फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर अगर मैं कहूँ कि सोर्स मूविंग है बट ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इन दैट केस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 कर देते हैं और सोर्स की वेलोसिटी वी एस है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों फॉर्मूले तो सेम नहीं दिख रहे, दे आर डिफरेंट। इफ मीडियम इज आल्सो मूविंग, लेट अस से आपके पास मीडियम मे बी वाटर और मे बी समथिंग एल्स जिसके अंदर विंड या किसी भी मीडियम में जिसमें भी लाइट मूव कर रही, देन वी कंसिडर सी प्लस माइनस मीडियम। इसका मतलब ये है कि मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड है लाइट। स्टूडेंट हम लोगों ने ये 11th क्लास में विद रिस्पेक्ट टू साउंड पढ़ा था कि अगर साउंड की डायरेक्शन में विंड चल रही हो तो ओवरऑल वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज, और अगर साउंड के अपोजिट डायरेक्शन चल रही हो तो ओवरऑल वेलोसिटी विल डिक्रीज। बट अगर हम लाइट की रिस्पेक्ट में देखें तो लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की रिस्पेक्ट में बहुत हाई स्पीड है, प्रैक्टिकली देयर इज नो सोर्स जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले। स्टूडेंट तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला था दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी सी माइनस वी नॉट ओवर सी, जहाँ पे हमने सोर्स को रेस्ट पे लिया था। और स्टूडेंट ये जो सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिया था विच इज सी डिवाइड बाय सी माइनस वी एस, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लिया था। नाउ स्टूडेंट हम इसमें से c कॉमन निकाल सकते हैं, तो वी गेट vs ओवर c लाइक दिस। स्टूडेंट इस वाले फैक्टर को मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी। और स्टूडेंट हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है कि 1 प्लस माइनस x की पावर n हो तो ये पावर आगे आ जाती है ओनली व्हेन दिस फैक्टर इज वेरी वेरी लेसर विद रिस्पेक्ट टू 1। और सर ये है भी, क्योंकि सर देखो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, तो vs बाय c की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप इस पावर को आगे ले आइए, तो -1 into नेगेटिव इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस, सो रियल फ्रीक्वेंसी 1 प्लस vs ओवर c। ओके एलसीएम भी ले लीजिए c प्लस vs। ओके स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन सोर्स, तो बच्चों हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम इजीली अप्लाई किया। अब अगर स्पीड ऑफ सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर की बात करें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी v माइनस वी नॉट v माइनस वी सी ओवर सी। नाउ स्टूडेंट दिस इज स्पीड चेंजेस बाय c बाय म्यू। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ रहती, बट सर अगर लाइट को हम डिफरेंट मीडियम में यूज करें तब तो स्पीड डिक्रीज होती है ना, बाय द फैक्टर ऑफ म्यू। तो सर आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी बाय 1 बाय म्यू फैक्टर अगर आप उसे किसी और मीडियम में लेके आ गए अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम। तो स्टूडेंट हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कितनी दिखाई देगी? सर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का मतलब होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस रियल फ्रीक्वेंसी। नाउ स्टूडेंट आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता है, इसमें से माइनस n0 कर दीजिए तो आपके पास शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 says in double slit experiment, that is interference की बात करेगा ये, using light of wavelength 600 nanometer, the angular width, बच्चों अभी अभी हम angular width के ऊपर बात कर रहे थे, angular width जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लैम्डा ओवर स्मॉल डी अभी पीछे निकाला इससे पहले वाले क्वेश्चन में, the angular width of a fringe formed on the distant screen is 0.1 degree. ओके बच्चों यहाँ पे देखो angular width 0.1 degree given है. What is the spacing between the two slits? Spacing between two slits means we need to calculate small d. Student 0.1 degree है ये. बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो सर 0.1 डिग्री इक्वल्स टू 0.1 into pi by 180 रेडियन. Lambda, which is given to us 600 nanometer. Now calculate this, we get d, that is the distance between the two slits. Now come to the next one, question 17. Question 17 says, answer the following questions. In a single slit diffraction experiment, बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि एक पेपर पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को कॉलम वाइज अलग अलग करके लिखें और आपको इजीली पता चल जाएगा कि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, the width of the slit is made double the original width. How does it affect the size and intensity of the central diffraction band? Now student single slit की बात कर रहा है. This is the distance d. यहाँ से लाइट आ रही है और आपको यहाँ पे लाइट यहाँ तक दिखाई दे रही है. This is the central maximum. Now student अब उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं इस d को डबल कर दूं, इसका साइज बढ़ा दूं, now what will happen? Now student हमें ये पता है कि central maxima is lambda by d, right sir? अब सर central maxima inversely proportional to d है. सर अगर inversely proportional to d है और आप d को डबल कर रहे हैं, बच्चों खुद सोचिए, अगर मैं स्मॉल d को डबल कर रहा हूं और सेंट्रल मैक्सिमा इससे इनवर्सली रिलेटेड है, तो अब बताइए डेल्टा पे क्या आएगा चेंज? बोलो बच्चों. डेल्टा अगर आप d को डबल कर रहे हैं तो डेल्टा विल रिड्यूस टू हाफ. इट्स एरिया विल रिड्यूस टू 1/4 बिकॉज पाई d स्क्वायर है. नाउ इंटेंसिटी, बेटा इंटेंसिटी एरिया पे इनवर्सली डिपेंडेंट है. बेटा अगर आपका एरिया 1/4 हो गया, इंटेंसिटी विल बिकम 4 times, कीपिंग पावर कांस्टेंट. तो इंटेंसिटी का मतलब है पावर बाय एरिया. अगर एरिया 1/4 हो गया तो इंटेंसिटी 4 times हो जाएगी. ओके, नाउ कम टू बी पार्ट. इन व्हाट वे इज अ डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट related to interference pattern in a double slit experiment? Now student, आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों के लिए जब आप चेंजेस देखेंगे, उसके टेबल बनाएंगे, उसके ग्राफ को देखेंगे, तो आपको दोनों में कुछ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा हो. नाउ स्टूडेंट मान लेते हैं यहाँ पे दो स्लिट्स S1 एंड S2 सेपरेटेड बाय स्मॉल d. यहाँ से लाइट आ रही है, यस सर. यहाँ से लाइट आ रही है, यस सर. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले जो रीजन है, इस वाले रीजन में यहाँ से भी लाइट आ रही है और यहाँ से भी लाइट आ रही है. तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन. स्टूडेंट ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा है, बट ये वाला हिस्सा तो ओवरलैप कर रहा है ना. दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन. Due to the consideration of diffraction effect of light from the slit S1 and S2, the fringe pattern will be modified. ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे diffraction pattern नहीं होता, तो सर आपके पास मैक्सिमा मिनिमास बन रहे होते हैं स्टूडेंट. बट अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न भी आ रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन, ये वाला
Intensity of bright and dark fringes. Now on screen, the overlapping region of diffraction, central maxima, ये है central point. यहाँ से बिल्कुल इसके सामने वाला point. This is a central point. बेटा यहाँ पे B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राइट फ्रिंज को, D रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क फ्रिंज को. तो B and D are representing bright and dark. We know that they are alternative, bright, dark, bright, dark, bright, dark. So on screen, the overlapping region of diffraction central maxima from S1 to S2, which is in the case of XY. Interference pattern can be seen, and beyond XY, इंटेंसिटी ड्रॉप्स. यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है और यहाँ पे इंटेंसिटी ड्रॉप कर रही है. स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि जब आप इंटरफेरेंस का ग्राफ बनाते हैं तो इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सेम रहता है, बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है. नाउ कम टू C part. When a tiny circular obstacle is placed in the path of light from the distant source, a bright spot is seen at the central of a shadow of the obstacle. Explain why. Student, यहाँ से लाइट आ रही है. सॉरी, यहाँ से लाइट आ रही थी, बीच में आपने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया. ओके सर, यहाँ से ऑब्स्टेकल आ रही है. अब देखो लाइट को ऐसे यहाँ तक जाना पड़ रहा है. ये इसकी शेडो यहाँ बन रही है, इस डिस्क की शेडो यहाँ है स्क्रीन पे. फ्रेंड, इफ द डिस्क इज स्मॉल, डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व. क्योंकि सर हमें पता है कि लाइट की डिफ्रैक्शन नेचर बहुत कम होती है. As all light waves from the edge of the disk reaching the center of the shadow, ये देखो यहाँ से डिफ्रैक्शन आई, लाइट यहाँ से आ रही थी और यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ मीट कर रही है. यहाँ से लाइट आ रही थी और डिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ जा रही है. जो लाइट थोड़ी सी ऊपर होगी वो लाइट सीधी निकल जाएगी. जो लाइट यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से आएगी वो सीधी निकल जाएगी. और यहाँ वाली जो लाइट है जो बिल्कुल एज पे हिट करेगी वो डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे हमें ऑब्जर्व. As all the light waves from the edge of the disk reaching the center of the shadow travel same path, these waves will interface at C, that is center point, constructively, that is maxima. As C, intensity of light will be increased and form a bright spot. यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे और यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रही है और सेंट्रल पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए आपको एक ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है. नाउ कम टू फोर्थ पार्ट. स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट सेज two students are separated by 7 meters. Partition wall in a room 10 meter high. Now, if both light and sound wave can bend around the obstacle, how is that the students are unable to see each other even though they can conversate easily? Student, मान लेते हैं यहाँ पे दो स्टूडेंट्स. हमें पता है कि लाइट और साउंड दोनों के पास डिफ्रैक्शन नेचर है, लेकिन सर साउंड के पास डिफ्रैक्शन नेचर बहुत हाई है जबकि लाइट के पास डिफ्रैक्शन नेचर बहुत कम है. तो जब यहाँ से साउंड वेव आती है तो वो तो डिफ्रैक्ट करके यहाँ तक पहुंच जाती है, लेकिन लाइट की डिफ्रैक्शन नेचर बहुत कम है. इसीलिए लाइट अगर एज पे आ रही होती, बिल्कुल जस्ट एज पे, तो वो तो डिफ्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन सर लाइट की डिफ्रैक्शन नेचर कम होने की वजह से वो इतने एंगल से डिफ्रैक्ट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से हमें साउंड तो सुनाई देती है लेकिन लाइट दिखाई नहीं देती. स्टूडेंट, for wave considering diffraction we use sin theta is equal to lambda by d. ये अभी हम पीछे दो क्वेश्चंस में यूज भी कर चुके हैं. स्टूडेंट, लाइट जो विबग्योर है उसकी वेवलेंथ रेंज करती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7900 एंगस्ट्रॉम तक. तो बच्चों, अगर हम लैम्डा 4 × 10⁻⁷ मीटर वाला भी यूज करें, क्वेश्चन में यहाँ पे D
6 मीटर हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट जो 7 मीटर अपार्ट थे, हमने यहाँ पे इसको नियरली 6 मीटर लेके किया। हमने एज्यूम किया कि अगर इसकी लेंथ नॉर्मल ह्यूमन हाइट 1 मीटर की है तो स्टूडेंट, तो यहाँ से साइन थीटा आ रहा है 4/6 into -7 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल, विच इज नियरली इक्वल टू 0। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0। अच्छा सर, साउंड की बात करें तो लैम्डा, दैट इज स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। सर, स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है 330 मीटर से लेके 344 मीटर पर सेकेंड तक, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी, लेट अस से हमने एक एज्यूम की 1000 हर्ट्ज, तो यहां से हमारे पास आंसर आ रहा है 33 सेंटीमीटर। नाउ साइन थीटा विच इज लैम्डा बाय डी 0.33 meter over 6, which is coming out to be 0.05. Student, so which is not very small and close to 0. Here theta has some finite value, so sound can bend to a significant level. इसीलिए हमें साउंड यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, जबकि लाइट ऑब्जर्व नहीं होती। Now come to the next one, E part. Ray optics is based on the assumption that light travel in a straight line. Diffraction effect observed when light propagate through small aperture slits or around small obstacle disproves this assumption. Yet the ray optics assumption is so commonly used in understanding location and several other properties of images in optical instruments. What is the justification? Student, हम लोग जब जूनियर क्लासेस में होते हैं तब से हमें पढ़ाया जाता है कि लाइट ट्रैवल इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ते हैं तो हमने देखा कि लाइट की बेंडिंग नेचर है, यस, ऑल्दो कम है। तो स्टूडेंट, जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट travel in a single straight line direction? No, light almost travel in a single straight line direction. Student, diffraction effects considerable only when the size of aperture or obstacle of the order which is nearly equal to wavelength of light used. Then the bending will be finite. And why we neglect light? Student, आपके पास ये दो रेजर वाली एक्टिविटीज से भी आपको बताया जाता है, आप इसे रेजर एक्टिविटी से भी करते हैं कि दो रेजर एक्टिविटी, दो रेजर्स को बहुत पास लेके आइए और लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवाइए। जब आप बहुत पास लेके आते हैं तो एक अच्छा डिफ्रैक्शन नेचर आपको ऑब्जर्व होता है, लेकिन जब आप रेजर्स को दूर लेके जाते हैं तो आपका डिफ्रैक्शन नेचर वेरी करने लगता है, चेंज हो जाता है और एक टाइम के बाद वैनिश ही हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब आपका ये डिस्टेंस नियरली वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, जो अभी हम कह रहे हैं कि लाइट नियरली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7900 एंगस्ट्रॉम तक उसकी वेवलेंथ वेरी करती है, तो D should be of order like this. This bending and use rectilinear propagation of light, as in most of the optical instruments and in the different experiment size are much bigger as compared to wavelength of light used. So हम लोग उसे मान के चलते हैं कि डिफ्रैक्शन नहीं हुआ। बेटा, आपको अगर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो ये डिस्टेंस इतना छोटा होना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को कॉरेस्पॉन्ड करे, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7900 एंगस्ट्रॉम तक। बट यूजुअली जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ये डिस्टेंस इतना स्मॉल नहीं होता, ये डिस्टेंस लार्ज होता है। डिस्टेंस लार्ज होने की वजह से लाइट का डिफ्रैक्शन नेचर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते और हमें लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन आई है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Question 18 says, two towers on top of two hills 40 kilometers apart. The line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. बेटा, यहाँ पे एक टावर आपको क्वेश्चन में कहा है कि मान लो ये एक हिल है, लेट अस से दिस इज अ हिल, इनके बीच में डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का,
इनके बीच में एक छोटा सा हिल है, बिल्कुल मिडवे में, तो दिस इज 20 किलोमीटर, दिस इज 20 किलोमीटर, एंड विच इज 50 मीटर बिलो. What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect? Now student, आपको टावर 1 से टावर 2 तक डिफ्रैक्शन किए बगैर यहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है. तो फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन फ्रॉम टावर 1 टू टावर 2 ड्यू टू डिफ्रैक्शन up to the location of hill H, this is a hill H, the spread of waves T must be lesser than 50 meters. बच्चों आपके पास ये 50 मीटर दे रखा है, क्योंकि अगर 50 मीटर से ज्यादा हो गया तो यहाँ से स्ट्राइक करेंगी रेस, तो आपके पास रीजन, इसी रीजन में लाइट होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक. नाउ यहाँ से इस हिल तक का डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर गिवन है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टेंस. थ्रू द अपर्चर साइज इज जस्ट 50 meters. नाउ स्टूडेंट, हम लोग अभी फ्रैक्शनल डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन कर भी चुके हैं. अपर्चर का स्क्वायर ओवर वेवलेंथ. नाउ फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज गिवन टू अस एज 20 kilometers, which is 20 to 10 power 3 meters. Aperture, which is given to us 50 meter here. Now we can calculate wavelength from this point. So we can calculate wavelength of light used, which is coming out to be 0.125 meters. Now come to the next one, question number 19. Question 19 says, a parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. स्टूडेंट, जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले उसके डायग्राम को बनाते हैं. ये आपके पास एक स्लिट गिवन है, यहाँ से आपकी लाइट आएगी which is 500 nanometer wavelength on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on the screen which is 1 meter away. Now स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल, जो छोटा सा एंगल है, साइन थीटा, बेटा ये डिस्टेंस x मान रहा हूं मैं, दिस इज कैपिटल D. नाउ x ओवर d, स्टूडेंट, व्हेन थीटा इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा. नाउ स्टूडेंट, दिस इज x, this is d, so which is nearly equal to sin theta, which is nearly equal to tan theta x over d. Student, आपके पास for the first minimum sin theta which is lambda by d, तो हमने x by d which is nearly equal to theta, sin theta which is lambda over slit width. स्लिट विड्थ को हमने यहाँ पे b सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो लैम्डा बाय b. सो x बाय d शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्लिट विड्थ. नाउ स्टूडेंट, स्लिट विड्थ वी कैन कैलकुलेट लैम्डा इनटू कैपिटल D ओवर x. नाउ स्टूडेंट, लैम्डा इज गिवन टू अस वेवलेंथ 500 nanometer in the question, capital D which is given to us 1 meter, x that is this distance which is 2.5 millimeter given to us. Now student, आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है and you need to calculate the result. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे. अब क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20 says, answer the following questions. When a low flying aircraft passes overhead. स्टूडेंट, आप जितने क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करेंगे आपको क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी हो जाएगी, तो आई प्रेफर कि आप हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करें. व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड, वी समटाइम नोटिस अ स्लाइटली शेकिंग ऑफ अ पिक्चर ऑफ आवर टीवी स्क्रीन. सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे टीवी
डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। यहाँ से जब कोई एक एरोप्लेन या कोई एक ऑब्स्टेकल जिसमें से खुद से एक रेडिएशंस निकल रही हैं, स्टूडेंट ऐसे तो हमारे स्काई में बहुत सारे बर्ड्स भी चलते हैं बट वो अपनी रेडिएशंस लिबरेट नहीं करते। एरोप्लेन जो अपनी रेडिएशंस लिबरेट कर रहे हैं, जब इनकी रेडिएशंस और हमारे सैटेलाइट के आने वाली रेडिएशंस जब आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो हमारे टीवी सिग्नल तक सैटेलाइट से डायरेक्ट वो वेव्स नहीं आती जो हम ओरिजिनली रिसीव कर रहे हैं। इसलिए हमारे टीवी में कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कुछ फ्लिकरिंग आती है, क्योंकि ये एरोप्लेन जैसे ही यहाँ से पास बाय करता है और इसकी लाइट, इसकी रेडिएशंस और सैटेलाइट से आने वाली रेडिएशंस इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है, तो हमारी फ्लिकरिंग बंद हो जाती है। चलिए अब देखते हैं। As aircraft intercepts the signal coming from the satellite, due to its metal body, it reflects some signal, and due to this, it recept and some phase delay occurs, and it causes disturbance, delay, shaking of the picture. Now come to B part. As you have learned in the text, the principle of linear superposition of wave, because linear superposition मतलब दो या दो से ज्यादा waves का आपस में interference करना, of wave displacement is basic to understanding intensity distribution in diffraction and interference pattern. What is the justification of this principle? Student, superposition principle के अंदर resultant displacement is a vector addition of individual displacement. Yes sir, ये तो हम 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, ऑसिलेशन और वेव्स वाले चैप्टर में हमने इसका यूज भी किया है, y1 प्लस y2। और सर हमने ये भी पता किया है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। यस सर। तो फॉर लार्ज एम्पलीट्यूड वेव्स द लीनियर पोजीशन डज नॉट होल्ड एंड satisfy when mathematically complex। तो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने रिजल्टेंट वेव दैट इज y1 प्लस y2 और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, लेकिन सर लार्ज एम्पलीट्यूड जब हो जाए तो सर ये रिलेशन बहुत अच्छे से फॉलो हम लोग नहीं करवा पाते। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? स्टूडेंट, हम लोग डिफ्रैक्शन को तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हमारा डिस्टेंस बहुत छोटा हो। स्टूडेंट, हमारी लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में वेरी करती है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21st। In deriving the single slit diffraction pattern, it was stated that intensity is 0 at angle n lambda by A. A means slit width. Justify this by suitable dividing the slit to bring out the cancellation. Student, diffraction pattern को आप observe करें। मान लेते हैं एक complete जो slit है उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, n पार्ट्स में हमने से डिवाइड किया। नाउ स्टूडेंट, अगर हमें पता है जो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास में ही एक चैप्टर में जहाँ पे आप पढ़ते हैं फॉर अ कंप्लीट वेव द एवरेज वैल्यू इज 0, आप लोग वहाँ पे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं। स्टूडेंट, जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को डिराइव करते हैं तो वहां पे आप करते हैं पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा। यस सर, ये सब हम करते हैं। तो अगर मैं इसको कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, लेट अस से लैम्डा बाय 2 के पार्ट्स, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज d sin थीटा। बच्चों देखो, यहाँ से रेज ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, ये रेज ऐसे स्ट्रेट जा रही हैं। This is let us say D, and यहाँ से मैंने एक perpendicular ड्रॉप किया, so this is referred as path difference. Now बच्चों, इस right angle triangle को ध्यान से देखिए। इस right angle triangle में sin theta which is perpendicular over hypotenuse. Now student, perpendicular
over hypotenuse, ये perpendicular over hypotenuse, that is equals to sin theta. Now student, मैंने इसको parts में divide किया, let us say lambda by 2 and lambda by 2, so that is equals to d sin theta equals to lambda by 2. तो बच्चों अगर मैं इसको n sources believe कर लूं, तो from source 1 and source 2 destructive interference take place at d sin theta equal to n lambda. देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आपके पास एक वेव और दूसरी वेव का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो इंटेंसिटी. और स्टूडेंट आपके पास D दैट इज लिक्विड, मैं इसको A ओवर 2n जो मैंने 2n पार्ट्स में से डिवाइड किया था. तो बच्चों अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे लिए A है और ये मेरे लिए मैंने इसको 2n पार्ट्स इमेजिन की, तो बच्चों एक स्मॉल d कितना होगा? सर एक स्मॉल d होगा a डिवाइड बाय 2n पार्ट्स. तो a डिवाइड बाय 2n को आप स्मॉल d लिख सकते हैं. a बाय 2n sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. सर 2 ने 2 को कैंसिल किया तो a sin थीटा विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा. यस सर, तो sin थीटा विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a. When angle is small and measured in radian, so sin theta is nearly equal to theta. तो how will you justify this? कि आपके पास n lambda by a है, हमने पूरी स्लिट को a डिस्टेंस इमेजिन किया, हमने उसको 2n पार्ट्स में ब्रेक किया, तो एक स्मॉल d किसके इक्वल हो गया? a डिवाइड बाय 2n. हमें पता है d sin theta इक्वल टू लैम्डा बाय 2. सर हमने d को लिखा a बाय 2n. सर 2 ने 2 को कैंसिल किया, सो a by n sin theta equals to lambda. So sin theta will be equals to n lambda by a, and this is the condition for minimum. Students, आप इसको इस मेथड से भी करके देख सकते हैं कि अगर ये टोटल डिस्टेंस a है, हम इसको हाफ हाफ पे डिवाइड करें a by 2, तो भी आपके पास ये जस्टिफाई होता है. दैट इज a by 2 sin theta इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. वहां पे हमने 2n पार्ट्स में डिवाइड किया था. आप इसको 2n पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, आप इसको हाफ और हाफ पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसे कर लीजिए. तो यहाँ पे d का मतलब हो जाएगा a by 2, वहां पे d का मतलब था a डिवाइड बाय 2n. अगेन वी गेट द सेम कंडीशन. तो a sin थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, तो आप a को नीचे भी ला सकते हैं. दैट्स द सेम कंडीशन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसे साथ साथ लिखा है और आपने इसे लर्न किया है. नाउ स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से आप इन चीजों को रिपीटली दोबारा देखें और अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर. चलिए स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मीनवाइल, बी सेफ एंड कीप लर्निंग. बाय.